Today we are going to start with chapter 2 of prose section. The title of the lesson is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. This lesson is written by Gordon Cook and Alan East. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in British waters. शुरू करते हैं कहानी को। संसार का पूरा चक्कर लगाने वाली उस समुद्र यात्रा को दोहराने के लिए जो 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स कुक ने की थी, मैं अपनी पत्नी मैरी, 6 वर्ष के बेटे जोनाथन और 7 वर्ष की बेटी सुजैन के साथ जुलाई 1976 को प्लाईमाउथ, इंग्लैंड से निकला। काफ़ी लंबे समय से मैरी और मैं, यानी एक 37 वर्षीय व्यवसायी, मशहूर खोजकर्ता की स्मृति जगाने का सपना पाले हुए थे और विगत 16 वर्षों से हमने अपना खाली समय ब्रिटेन की विभिन्न नदियों पर अपनी समुद्र यात्रा की कुशलता को निखारने में बिताया था। Our boat Wave Walker, a 23-meter, 30-ton wooden-hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. हमारी नाव एक 23 मीटर लंबी, 30 टन भारी लकड़ी के बाहरी फ्रेम वाली हमारी खूबसूरत नाव वेव वॉकर बिल्कुल व्यावसायिक ढंग से बनी थी और हमने इसकी फिटिंग और वहाँ उपलब्ध सबसे खराब मौसम में इसका परीक्षण करने में कई महीने बिता दिए। फर्स्ट फेज ऑफ वॉयज। The first leg of our planned 3 years, 10,500 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Siegler, to help us tackle on the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. यात्रा का प्रथम चरण। हमारी 3 वर्षों की नियोजित यात्रा का पहला चरण 10,500 किलोमीटर तक खुशी से गुजरा, जिसमें हम अफ्रीका के दक्षिणी तट से केप टाउन तक गए। वहां पूर्व की ओर बढ़ने से पहले हमने संसार के सबसे मुश्किल समुद्रों में से एक दक्षिणी हिंद महासागर से निपटने में हमारी सहायता करने के लिए 2 और नाविक लोगों को, जिनका नाम अमेरिकन लैरी विजिल और स्विस हर्ब सिगलर था, उनको अपने दल में शामिल किया। Christmas and New Year's Day at sea. On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our mainmast. December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday, complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon. And it did change for the worst. समुंदर पर क्रिसमस और नव वर्ष। केप टाउन से बाहर दूसरे दिन ही तेज हवाओं से हमारा मुकाबला शुरू हो गया। अगले कुछ सप्ताहों तक तेज हवाएं चलती रहीं। मुझे तेज हवाओं की फिक्र नहीं थी, लेकिन लहरों का आकार खतरे की घंटी बजा रहा था। लहरें हमारे मुख्य मस्तूल तक 15 मीटर ऊंची थी। 25 दिसंबर को हम केप टाउन के पूरब में 3500 किलोमीटर पहुंच गए थे। खराब मौसम के बावजूद हमने क्रिसमस ट्री के साथ एक अच्छी छुट्टी बिताई। नववर्ष के दिन भी मौसम में कोई सुधार नहीं दिखा।
लेकिन हमने अनुमान लगाया कि ये जल्दी ही बदलेगा, और ये हुआ भी, लेकिन और भी बुरा। मौसम और ख़राब हो चुका था। Dawn on January 2. At dawn on January 2, the waves were gigantic. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous sea rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in loop across the stern. Then we double lashed everything, went through our life draft drill, attached lifelines, donned oil skins and life jackets, and waited. 2 जनवरी की सुबह लहरें बहुत विशाल हो गई थीं। हम केवल एक छोटी स्टॉर्म जिब यानी छोटी मस्तूल के साथ आगे बढ़ रहे थे। फिर भी हमारी गति 8 समुद्री मील की थी। जब जहाज़ लहरों के ऊपर उठता था तो हमें अनंत दूरी तक समुद्र अपनी ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता था, और चीखती हवाएं और बौछार कानों के लिए पीड़ादायक थी। जहाज़ को धीमा करने के लिए हमने छोटी मस्तूल भी उतार ली और एक मजबूत रस्सी का फंदा बनाकर जहाज़ के पिछले हिस्से से बांध दिया। फिर हमने हर चीज़ को 2 बार बांधा, जीवन रक्षक अभ्यास किया, जीवन रक्षक वाटरप्रूफ पोशाक और जैकेट पहन ली, रस्सियाँ बांध ली और इंतज़ार करने लगे। डिजास्टर केम। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. The wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar and an enormous cloud towered aft of the ship. With horror, I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of other waves, with a frightful breaking crest. The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. विनाश का आगमन। आने वाले विनाश का पहला संकेत लगभग 6 बजे एक व्यापक सन्नाटे के साथ आ गया। हवा रुक गई और आसमान अचानक काला हो गया। फिर एक तेज दहाड़ उठी और एक विशालकाय बादल जहाज़ के पीछे उठने लगा। मैं ये जानकर अत्यंत भयाक्रांत हो उठा कि ये बादल नहीं था, बल्कि एक इतनी बड़ी लहर थी जितनी दूसरे लोगों की तरह मैंने भी कभी नहीं देखी थी। ये बिल्कुल सीधी खड़ी लहर थी और दूसरी लहरों की ऊंचाई की तुलना में लगभग दुगनी ऊंची थी, एक टूटते हुए पर्वत शिखर की तरह। शोर ने अब गर्जना का रूप ले लिया था। जैसे ही जहाज़ का पिछला भाग लहरों के ऊपर उठा, एक क्षण के लिए मुझे लगा कि जहाज़ इस पर चढ़ सकता था। Conquest began, but then a tremendous explosion shook the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death. As I was losing consciousness, I felt quite peaceful. Unexpectedly, my head popped out of the water. A few meters away, Wave Walker was near capsizing, her mast almost horizontal. Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guardrails and sailed through the air into Wave Walker's main boom. मुकाबले की शुरुआत। लेकिन तभी एक भयानक विस्फोट ने जहाज के डेक को थर्रा दिया। उजले और हरे पानी का तेज बहाव जहाज पर फट पड़ा। मेरा सिर जहाज की स्टीयरिंग व्हील, जिसे हेल्म कहते हैं, उससे टकराया और मुझे पता था कि मैं जहाज के बोर्ड से उछलकर लहरों के नीचे डूब रहा था। जैसे जैसे मैं होश खो रहा था, मैंने अपनी आती हुई मौत को स्वीकार कर लिया था। मुझे सब कुछ बहुत शांत महसूस होने लगा था। तभी अप्रत्याशित तरीके से मेरा सिर पानी से बाहर आ गया। कुछ मीटर दूर वेव वॉकर पलटने वाला था। उसकी मस्तूलें लगभग क्षैतिज हो चुकी थीं। तभी एक लहर ने उसे सीधा कर दिया और मेरे जीवन रक्षक रस्सी तन गई। मैंने सुरक्षा रेलिंग को पकड़ा और हवा में उछलता हुआ वेव वॉकर के मुख्य भाग में पहुंच गया। Struggle continues. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll.
My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow, I found the wheel, lined up the stern for the next wave, and hung on. Water, water everywhere. I could feel that. The ship had water below. But I dared not abandon the wheel to investigate. Suddenly, the front hatch was thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. The decks are smashed. We are full of water. संघर्ष जारी रहता है। एक के बाद एक आने वाली लहरें मुझे किसी फटी हुई गुड़िया की तरह पूरे डेक पे उछालती रहीं। मेरी बाईं पसली टूट गई थी, मेरे दांत टूट चुके थे और मुंह में खून भरा हुआ था। किसी तरह मैंने हेल्म को फिर से पकड़ा, जहाज के पिछले हिस्से को अगली लहर का सामना करने के लिए सीधा किया और मजबूती से वहीं पर साध लिया। हर तरफ पानी ही पानी। मैं महसूस कर सकता था कि जहाज के निचले भाग में पानी भरा था, लेकिन पता लगाने के लिए मैं हेल्म को छोड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता था। तभी सामने हैच खुला और मैरी नजर आई। वो चिल्लाई, हम डूब रहे हैं, डेक टूट गए हैं और पूरे जहाज में पानी भर चुका है। द सिंकिंग शिप। टेक द व्हील, आई शाउटेड as I scrambled for the hatch. Larry and Howe were pumping like madmen. Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard side bulged inwards. Cloths, crockery, charts, tins, and toys sloshed about in deep water. I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered from the upper bunk, but my head is hurt a bit, said Sue, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped heads. डूबता जहाज। दरवाजे की ओर घुटनों के बल आगे बढ़ते हुए मैं चिल्लाया, स्टीयरिंग पकड़े रखो। लैरी और हर पागलों की तरह पानी बाहर पंप कर रहे थे। टूटी हुई लकड़ियां अजीब आड़ी टेढ़ी अटकी थीं। स्टार बोर्ड एक ओर से अंदर की ओर धंस गया था। कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट, टिन और खिलौने गहरे पानी में गोते खा रहे थे। आधा तैरते और आधा घिसटते हुए मैं बच्चों की केबिन में गया। क्या तुम लोग ठीक हो? मैंने पूछा। हाँ, ऊपर की बंक बेड से उन्होंने जवाब दिया। लेकिन मेरे सिर पे थोड़ी चोट आई है। सू ने अपनी आंख के ऊपर आई बड़ी सी सूजन की ओर इशारा करते हुए कहा। मेरे पास सूजे हुए सिर के बारे में चिंता करने का वक्त भी नहीं था। Repairing began. After finding a hammer, screws, and canvas, I struggled back on deck. With the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. If I could not make some repairs, we would surely sink. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch cover across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins, and the electric pump short circuited. The water level rose threateningly. मरम्मत की शुरुआत। हथौड़ी, पेचकस और कैनवास खोज निकालने के बाद मैंने डेक पर वापस संघर्ष शुरू किया। टूटकर खुल गई दीवार से हम हर उस लहर का पानी बाहर निकाल रहे थे जो हमारे ऊपर टूट रही थी। यदि मैं कुछ मरम्मत नहीं कर सका तो निश्चय ही हम डूबने वाले थे। किसी तरह मैंने कैनवास को फैलाया और वाटरप्रूफ हैच कवर से खुले हुए बड़े छिद्रों को आर पार ढककर पूरी तरह सुरक्षित किया। कुछ पानी अभी भी नीचे की ओर बह रहा था, लेकिन अधिकांश पानी दूसरी ओर विक्षेपित हो रहा था। अधिक समस्या तब खड़ी हो गई जब हमारे हैंड पंप केबिन में तैर रहे कचरे से अवरुद्ध हो गए और इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो गया। पानी का स्तर खतरनाक हो उठा। डेक पर वापस आकर मैंने पाया कि अतिरिक्त पंप जहाज के बाहर की ओर पाल की रस्सी, डोंगियों और मुख्य लंगर के साथ खुले पड़े थे।
Mayday calls in vain. Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering, and working on the radio. We were getting no replies to our Mayday calls, which was not surprising in the remote corner of the world. निरर्थक सहायता संदेश। तभी मुझे याद आया कि हमारे पास चार्ट रूम की फर्श के नीचे एक और इलेक्ट्रिक पंप था। मैंने इस पर बाहर वाला पाइप जोड़ा और मैं ईश्वर का आभारी था कि यह काम कर रहा था। रात अंतहीन पंपिंग, जहाज की स्टीयरिंग थामने और रेडियो पर काम करने के बेहद ठंडे कार्यक्रम के साथ सरकती रही। हमें हमारी सहायता के लिए भेजे संदेशों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था, जो कि दुनिया के सुदूर कोने में कोई आश्चर्य की बात भी नहीं थी। Sue's patience. Sue's head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied, I did not want to worry you when you were trying to save us all. सू का धैर्य। सू का सिर चिंताजनक स्तर तक सूज चुका था और उसकी दोनों आंखें उभर कर बड़ी और काली हो गई थीं। और अब उसने हमें अपनी बांह पर एक गहरा घाव दिखाया। जब मैंने उससे पूछा कि उसने इससे पहले अपनी ज़्यादा चोटें क्यों नहीं दिखाई थीं, तो उसने उत्तर दिया, मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी, जबकि आप हम सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे।